ये बैंक्स ने फीस लगाई है मंथ एंड के ऊपर। अब तो बैंक्स ने सबने विड्रॉ कर लिया बिकॉज हम एंगेज हो गए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ख्याल ये था कि हम कंज्यूमर को इसमें प्रोटेक्ट करें। द बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ वॉलंटरली विदड्रॉइंग दिस थिंग। हर एक जो रेगुलेटरी मूव होती है या लॉ होता है या फिस्कल कोई एक्शन होता है या मॉनेटरी एक्शन होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। हमारे एक नैरेटिव ये बिल्ड कर दिया गया कि नहीं, सरकार को जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए और इंसेंटिव नहीं देना चाहिए। सरकार को बिल्कुल इंसेंटिव देना चाहिए, बट सही चीज़ों पे इंसेंटिव देना चाहिए, गलत चीज़ों पे इंसेंटिव नहीं देना चाहिए जो रेंट सीकिंग बन जाए। कंपनीज आर सपोज टू इन्वेस्ट इन देयर ओन बिजनेस और रिलेटेड बिजनेसेस, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। दे शुड नॉट बी इंसेंटिवाइज टू बी arbitraging the banks against any anomaly that is there in the interstate environment. MDR को लगाने की एक लार्जर लॉजिक ये थी कि हम सेविंग्स जो है उसका एक ट्रेंड बढ़ाएं अपने मुल्क में। हमारा वी आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, वी आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द रीजन। लास्ट नंबर आई सॉ वी वर स्ट्रगलिंग अराउंड 10%. इंडिया एंड बांग्लादेश वर बिटवीन 25 and 30%. जिस मुल्क में बैंक सेक्टर्स एक्टिव एफर्ट कर रहे हैं कि उनको टैक्स ना पे करना पड़े, वहाँ एक सेक्टर है जो कह रहा है कि मैं हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हूँ, मैंने लास्ट ईयर तकरीबन 700 अरब का टैक्स दिया है और इस साल मैं उससे भी ज़्यादा टैक्स दूंगा और मुझसे और ले लो, मगर मेरी इनकम से रिलेटेड ले लो, मेरी बैलेंस शीट के ऊपर डिस्टॉर्ट मत करो, उसको मत छेड़ो, उसको टिंकर ना करो। Assalamu alaikum. The purpose of today's conversation is to get a sense on the state of play in banking. We have with us Mr. Zafar Masood, who's the President and CEO of Bank of Punjab, and he's also the Chairman of Pakistan Banks Association. Zafar Saab, thank you for your time. Thank you for coming through and discussing the topical banking issues which are on almost everybody's mind these days. Right. This has been an unusual year for banks and banking. Would you agree? And continuing. Okay. It's not finished yet. There are still unfinished businesses to be sorted out. Another thing that was reported that the Pakistan Agricultural Storage and Services Corporation and Trade Corporation of Pakistan, they both raised financing at a 4% respectively for, Kaibor minus 12. large Kaibor minus 12. What's the story behind this? So, government has introduced this tax called Asset Deposit Ratio Tax, ADR tax as we call it. This is a very distortive tax. So, what is this tax all about? This tax is actually is based on the December 31st number, which is the year end of the banks, where how many of their deposits have been given out to the private sector in terms of assets. And if that is less than 50%, the banks are required to pay a tax of 10%. If it is between 50 and 40, if it falls down 40%, then an additional 66% is applicable on the banks. Now, banks are already, by the way, in the highest tax bracket in Pakistan, and banking industry of Pakistan is paying the highest tax in terms of bracket, right, in comparison to the other banking companies, the banking sector in the region. So the banks find different ways and means of making sure that they keep their assets above 50% at December 31st, so that they don't have to pay that extra 10% tax. They're already paying 49%, and this extra 10% takes it to 59%, and if you are below 40%, then it's gone for 65%. It's 65%. 65% is something that no industry can sustain. The other important aspect is that what constitutes private sector credit. In the definition for calculating ADR. Normally it's not the real private sector as such. It includes the financial institutions, i.e. the development financial institutions, DFIs, the microfinance institutions,
the asset management companies. So it includes them too, which is not private sector lending at all. And secondly, it also includes entities like Government of Pakistan's TCP and PASCO that you talked about. Them too. Even the government, they consider lending to the Punjab Food and Sindh Food Department as part of that asset of the private sector, which is an anomaly as well. And therefore, people were, have been quoting an extremely, the way it works is कि हर क्वार्टर के ऊपर जो है ना इसकी नई बिडिंग करवाई जाती है. तो जो आखिरी क्वार्टर की बिडिंग होती है उसके अंदर सब एक दूसरे की गर्दन काट रहे होते हैं, बिकॉज दैट्स क्रॉसिंग जनवरी, दिसंबर 31 को वो जनवरी में जाके फॉल कर रहा होता है. अब ये जनवरी में फिर एनॉमली ख़त्म हो जाएगी. दिस विल बी काइबोर प्लस 1% or 2%. It won't be काइबोर minus 12%. The fact of the matter is कि ये एसेट डिपॉजिट रेशो टैक्स लगाने का मकसद क्या था? इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपको प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को प्रमोट करना है. मगर जिस तरह ये एग्जिस्टिंग फॉर्म एंड शेप में है वो तो कहीं से उसके करीब भी नहीं आ रहा. मगर देयर इज़ अ लार्जर इशू एट हैंड विच वी नीड टू एड्रेस, एंड दैट लार्जर इशू इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम टू लेंड टू द प्राइवेट सेक्टर. अच्छा, अब इसमें मेरी एक एनालॉजी है मंसूर, जो मैंने अभी एक सेमिनार में कही थी, बट वो क्लोज लूप सेमिनार था. तुम्हारा तो खैर बहुत अच्छा व्यूवरशिप है, तो होपफुली ये लोगों के पास ज़्यादा जाएगा. देखिए, देयर इज़ अ सर्कुलर एनालॉजी जिसको मैं कहता हूँ. वो सर्कुलर एनालॉजी क्या है? सर्कुलर एनालॉजी ये है कि गवर्नमेंट जो है वो 52% सेक्टर से टैक्स नहीं लेती या कम टैक्स लेती है. उसका नतीजा ये होता है कि जो फिस्कल डेफिसिट उसके पास होता है, जो नॉर्मल कोर्स में उसके पास आना ही आना है, वो उसको फंड करने के लिए बैंक पे डिपेंड करना पड़ता है. जब वो बैंक से पैसा मॉप अप करता है तो बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाती है और बैंक के पास इंसेंटिव भी कम हो जाता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को लेंड करे. मगर उसका एक और साइड इफेक्ट है. उसका साइड इफेक्ट ये कि क्योंकि 52% ऑफ द सेक्टर को आपने टैक्स नहीं किया हुआ, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आता. बैंकिंग 101 इज द बैंक डील इन डॉक्यूमेंट्स, नॉट इन गुड्स. सो जब हम डॉक्यूमेंट्स पर डील करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि जी आपकी इनकम कितनी है, आपकी सेल कितनी है, आप या फिर लोन वापस भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, कितना लोन चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, मैं वो कुछ भी अवेलेबल नहीं होता. तो क्योंकि वो 52% ऑफ द इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, तो बैंक्स भी लेंड नहीं कर पाते हैं, तो आपके इकोसिस्टम का इशू भी है. तो इट्स अ सर्कुलर थिंग. अगर गवर्नमेंट उन पर टैक्स लगा देगी तो गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट है फिस्कल की वो कम हो जाएगी, बैंक के पास लिक्विडिटी आ जाएगी, और यहाँ पर जब टैक्स लग जाएगा तो वो क्रेडिट वर्दी हो जाएगा मेरे लिए. मेरे पास लिक्विडिटी भी है और वो क्रेडिट वर्दी भी है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना विस्की गांठ. वो विस्की गांठ जो है वो टैक्सिंग है टू दो सेक्टर्स विच आर आउट ऑफ टैक्स. हम तो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट के अंदर है बैंकिंग इंडस्ट्री. आप उसको क्यों पिनलाइज कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर जो वो नहीं कर सकता? मैं क्या करूँ? अगर मैं टैक्स दे दूंगा फिर आपको, लेकिन मैं लेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लेंड यूँ तो नहीं करूँगा कि मैं जाके अपनी NPLs बिल्ड, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बिल्ड कर लूँ. वो तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए. बिल्कुल. जो प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग है, डेफिनेटली दैट्स अ कॉन्वर्सेशन वी हैव केप्ट फॉर द सेकंड हाफ. दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन. बट जस्ट टू कंटिन्यू टू अनपैक व्हाट्स हैपनिंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. सो आपने ADR के बारे में एक बात बताया. आई हैव 2 more points. अब मैं इस पे आपको ज़रा मंशूर एक बात बड़ा क्लियर कर दूँ. इन सब चीज़ें कहने के बावजूद हम इस बात से बड़े कॉन्शियस हैं एज एन इंडस्ट्री, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन, एंड आई एम talking on behalf of the entire industry. I'm not talking just on myself. The banking industry has always contributed to the public exchequer, will continue to contribute to the public exchequer, and we also realize that perhaps the government would have accounted for some amount of money under the ADR tax in this fiscal year as well. We are happy to sit with the government to figure out how to make up for that possible shortfall in their revenue, because if ADR tax goes away, then government has to make up for that somewhere. All we are saying is, please find a mechanism to charge this on our income, but not on something
that we have limited control on, and which is a one-off thing related to our balance sheet, whereby it's a possible situation that the bank is in a loss, but they still have to pay an ADR tax because it has nothing to do with the income. All we are saying is, please connect it with our income. We are willing to sit across the table with you, get this sorted out, see how we can make up for it, but related to our income. अब ये मुझे बताइए मंसूर, ये वाहिद सेक्टर है इस मुल्क में जो ये कह रहा है मुझसे और टैक्स ले लो. मुझे कोई सेक्टर दिखा सकते हैं आप जो ये कह रहा है कि मुझसे और टैक्स ले लो? लेकिन खुदा के वास्ते टैक्स उस मद में ले लो जहां तुम्हें लेना चाहिए, उस मद में ना लो जिससे मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शन हो रही है, जहां मुझे काइबोर -12% पे सरकार को ही पैसे देने पड़ रहे हैं, आपका भी उस पर प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा, या मुझे काइबोर -600 देने पड़ रहे हैं एक DFI को या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, आपका ऑब्जेक्टिव प्राइवेट सेक्टर का मीट नहीं हो रहा, तो ये किसी सूरत भी आपको हेल्प नहीं कर रहा. हम वो मेकअप करने को तैयार हैं. Let's talk about it, but these distortions have to go away, and this will help in the larger ecosystem to develop. And जिस मुल्क में सेक्टर्स एक्टिव एफर्ट कर रहे हैं कि उनको टैक्स ना पे करना पड़े, वहां एक सेक्टर है जो कह रहा है कि मैं हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हूं, मैंने लास्ट ईयर तकरीबन 700 अरब का टैक्स दिया है और इस साल मैं उससे भी ज्यादा टैक्स दूंगा और मुझसे और ले लो, मगर मेरी इनकम से रिलेटेड ले लो, मेरी बैलेंस शीट के ऊपर डिस्टॉर्ट मत करो, उसको मत छेड़ो, उसको टिंकर ना करो. सो ADR की आपने बात की, थैंक यू फॉर पुटिंग दिस अक्रॉस. MDR इज अनदर थिंग. आई थिंक स्टेट बैंक की एक उस पर डायरेक्टिव भी आया है कि उन्होंने ये बोला है कि जो मिनिमम MDR जो है या मिनिमम प्रॉफिट रेट में अगर आप बोलें डिपॉजिट रेट पे, वो कंपनीज पे देने की आप पे लाजिम नहीं है, बट आप जो इंडिविजुअल्स हैं उनको वो मिनिमम प्रॉफिट रेट देंगे. सो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. इन द पास्ट कब से आया है? ये 2008 में आया था पहली दफा. अगेन अ वेरी डिस्टोर्टिव रेगुलेशन, और डिस्टोर्टिव क्यों है वो मैं आपको भी समझा दूंगा. देखिए, बात ये है कि हर एक जो रेगुलेटरी मूव होती है या लॉ होता है या फिस्कल कोई एक्शन होता है या मॉनेटरी एक्शन होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अगर उसके पीछे कोई लॉजिक और ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, तो वो तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनता. MDR को लगाने की एक लार्जर लॉजिक ये थी कि हम सेविंग्स जो है उसका एक ट्रेंड बढ़ाएं अपने मुल्क में. हमारा वी आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, वी आर वन ऑफ द वर्स्ट इन द रीजन. लास्ट नंबर आई सॉ वी वर स्ट्रगलिंग अराउंड 10%. इंडिया एंड बांग्लादेश वर बिटवीन 25 and 30%. एंड चाइना तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ. चाइना तो 45-50% के आसपास की बात होती है, 40-45-50%. सो सेविंग रेट्स को बढ़ाना है. 2008 से आज तक आप देख लीजिए हमारे सेविंग रेट्स उल्टे नीचे आ गए, ऊपर नहीं गए. इसका मतलब ये है कि ये रेगुलेशन काम नहीं कर रही थी. दूसरी चीज़ ये कि आपने सेविंग जो बढ़ानी है, आपने इंडिविजुअल्स को प्रमोट करना है ना कि वो आके सेविंग रेट में डालें. तो जो अभी स्टेट बैंक ने ये मूव किया है, ये बहुत ही सेन और बहुत ही समझदारी का मूव है, इन द सेंस दैट यू नो दे हैव kept that minimum deposit rate still going for the individuals and private companies, but they have taken everybody else out of it, especially the public listed companies, the government SOEs, enterprises. They've taken all of them out because the objective of those entities are not to keep the money with the banks and make interest income. Their objectives are very different. The companies are supposed to invest in their own business or related businesses, create employment. They should not be incentivized to be arbitraging the banks against any anomaly that is there in the interest rate environment. The second one is that public sector के तो objective बिल्कुल different होता है. Public sector के तो budget के number होते हैं, उन्होंने मीट करना होता है, जून के अंदर अपने पैसे ज़्यादा खर्च करने होते हैं, तो उसको वो खर्च करें बजाय इसके कि उन्होंने वो बैंकों में रखे हुए हैं. एंड देयरफॉर इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू कि आप उनको ये कहें कि तुम जाओ. प्लस ये इतने बड़ी कंपनीज होती हैं कि इनके अंदर प्रोफेशनल ट्रेजरीज होती हैं. वो प्रोफेशनल ट्रेजरीज जो होती हैं वो
वो अपने फंड्स को उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकती हैं रादर देन पुटिंग इन द सेविंग अकाउंट्स विद द बैंक्स। जाके एसेट मैनेजमेंट में लगाइए जो एक्टिविटी को ज़्यादा जनरेट करेगी, या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डाल दीजिए। आज क्या हो रहा है, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि आप बैंक्स आर एक्टिंग एज अ कॉन्डुइट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिक्विडिटी दे रहा है, उसको हम वापस गवर्नमेंट को दे रहे हैं बॉन्ड के अंदर, और 1 या 2% अपना स्प्रेड बना रहे हैं। वो 1-2% स्प्रेड भी हमसे बचा लीजिए, वी आर विलिंग टू फॉरगो दैट एज वेल, बट प्लीज गो एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, this is actually helping the government in a big way, not paying extra to the banks, and mopping up the liquidity other than the banks directly from the corporations and public sector entities too, which are happen to be cash rich, not on a permanent basis but maybe at any given point in time. So ये उस हिसाब से बहुत अच्छा मूव है। ऑल्दो मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि इससे इंडिविजुअल के सेविंग रेट्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़े इश्यूज हैं। जो आज सेविंग का इशू है वो उसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। उस पर पहला प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का है, दूसरा प्रॉब्लम हमारी इन्फ्लेशन का है। लोगों के पास सेविंग इतनी बेचारों के पास है ही नहीं कि वो सेव कर सकें, तो वो एक बड़ा इकोसिस्टम का प्रॉब्लम दोबारा वहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से नेवरदलेस अगर आपने फिर भी इंडिविजुअल पे रख लिया है, तो वी एज अ बैंकिंग इंडस्ट्री आर फुली सपोर्टिव ऑफ दिस। वी से दैट इट्स अ वेरी गुड आइडिया, यू मस्ट डू इट, बट द रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स which are required to invest that money into the system, into the economy directly, they should not be encouraged to be given this minimum deposit rate. Makes sense, sir. I think the incentive from larger companies to keep their deposits in a saving account has been taken away. At the same time, banks are issuing notices to large deposit holders, individual large depositors also, 1 billion and plus, कि जी, if you're going to keep your deposit in our account, we're going to charge you a service fee. So what we see is that incentive from large deposits थोड़ा सा हट रहे हैं। My question is कि ये जो पैसा है आपके ख्याल से जो इससे फ्री अप होगा, ये कहाँ पे जाएगा? अच्छा, एक तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि जो ये बैंक्स ने फीस लगाई है मंथ एंड के ऊपर, अव्वल तो बैंक्स ने सबने विड्रॉ कर लिया। अच्छा, बिकॉज हम एंगेज हो गए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ख्याल ये था कि ये हम कंज्यूमर को इसमें प्रोटेक्ट करें, तो बेहतर है कि आप इसको विड्रॉ कर लें। तो वी हैव वॉलंटियरली, गवर्नमेंट, द स्टेट बैंक, द बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ वॉलंटियरली विड्रॉइंग दिस थिंग्स। अब ज़रा 1 मिनट स्टेप बैक करते हैं, ये आया क्यों था इन द फर्स्ट प्लेस? इट हैज़ नथिंग टू डू विद द MDR, ऑल्दो इट हैज़ समथिंग टू डू विद MDR एज वेल, बट प्राइमरीली ये क्यों आया था? इसलिए आया था बिकॉज आज भी जो ADR टैक्स लगा हुआ है ना, वो वेरी मच देर। अब क्या सिचुएशन है, मर के मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे दे के, काइबोर -12 का मतलब ये है कि मैंने कुछ नहीं, तो अब मैं कॉस्ट ऑफ फंड पे भी अगर ले लेता हूँ तो मैंने कुछ नहीं तो 8-9% जो है ना वो कॉस्ट पे की है इसके ऊपर जी, राइट। मैं डिपॉजिट महंगा है मेरे पास मिक्स, और मैं सस्ता लैंड कर रहा हूँ बिकॉज मैं अपना टैक्स बचा रहा हूँ वहाँ पर। तो लेट से 7-8% मैंने अपनी कॉस्ट सेव की है, 10% की जो मैं टैक्स पे करना था वो मुझे 3% वहाँ बच रहा है, राइट। मगर मैं वो करने के बाद भी मर के, बिकॉज उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, मैं बेयरली क्रॉस कर रहा हूँ 50%। आई एम स्टैंडिंग करंटली एट 53, 54, 55%. One large deposit comes my way and into my system on 31st of December and turn my ratio upside down of asset deposit, then my ratio will go down 50%, and I have to pay an extra 10% there. So I spent 7-8% in meeting that, but because of the danger that somebody, and this is we are talking about current account, forget about even saving account, even current account में आगे किसी ने डंप कर दिए और लास्ट डे के ऊपर मेरे पास 400-500 बिलियन रुपया, तो मुझे तो डबल वहमी हो गया। मुझे 10% टैक्स भी पे करना है और 7-8% उधर भी देना है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बैंकों ने किया था। दैट प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, इट हैजंट गॉन अवे। वी एज पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन हैज अप्रोच्ड, formally approaching the FPR chairman and the Minister for State on finance to get engaged with us and get the resolution of this ADR tax also very soon. Because so speaking of the finance minister, being an ex-banker,
I believe we would have obviously insights from the private sector ke how do they look at the, but speaking on the government, do you think the policies have been consistent, have been stable over the last ये वाली तो year? पॉलिसीज पहले से थी। जी 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 जी। ये तो था, ये अबेंस में था एविया टैक्स, ये दोबारा से अबेंस से उन्होंने हटा लिया। So things are moving in the right direction as in जो आई थिंक वो हमारी हद तक कोई इतना बड़ा वो नहीं है। टैक्सिंग जो ज़्यादा करने वाला मामला है वो अपनी जगह पे। बिल्कुल। बाय द वे फाइनेंस मिनिस्टर को हम बिल्कुल एज बैंकिंग इंडस्ट्री हम बिल्कुल उनको टच नहीं करते। हम सिर्फ उनसे आके प्रायोरिटी सेक्टर जो है इकोसिस्टम डेवलपमेंट उस पर बात करते हैं। इन मैटर्स के ऊपर ना हमने आज तक कभी स्टेट उनसे बात की है, ना हम उनसे करेंगे। ये हमारा वेरी क्लियर रेजोल्यूशन है, बिकॉज ये उसके लिए जब हमारे बाकी फोरम्स अवेलेबल हैं, गवर्नर स्टेट बैंक है, एफबीआई चेयरमैन है, तो व्हाई डू वी हैव टू गो टू हिम? Just as a Bank of Punjab, आपका जो पिछला साल गुजरा है on your asset side and your liability sides, where have you seen activity? सो ओवरऑल एक्टिविटी जो थी वो तो बड़ी लेकलस्टर थी ऑन द एसेट साइड, बिकॉज देवर इस किस्म के इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कौन बोरो करेगा? Exactly. कोई भी बिजनेस वायबल नहीं है। बट हमारे केस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेक्टर। हमारा सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है बिकॉज वी वर्क वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट। तो जहाँ वो हमारे लिए एक हद तक थोड़ा सा नुकसानदेह भी होता है, बिकॉज अगर आप हमारे कॉस्ट ऑफ फंड आज देखेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपॉजिट्स। मगर ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हम बहुत एक्सटेंसिवली काम करते हैं। अभी हमने 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम किया है, जिस तरह किसान कार्ड है। इट इज़ सच अ फिनोमिनल इनिशिएटिव कि आई कांट बिगिन टू टेल यू। तुम्हें उस पर मंसूर सेपरेट प्रोग्राम करना चाहिए। आई विल डू अ सेपरेट प्रोग्राम विद यू ओनली ऑन किसान कार्ड। सो जस्ट टू लेट यू नो, 2020 में total number of borrowing farmer was 3.4 million. They were consistently falling down, and as of today they are 2.7 million. Okay. This initiative alone, as of today, we have crossed 500,000 farmers. Just this Kisan Card program, and the target is to get 750,000. Farmers in this, which means that the moment we will touch 750,000 number, we will go back to the highest number of 2020 where 3.45 million farmer was borrowing from the banking industry. This one initiative alone would have more than 1/3 of the market share of the industry. वो सारा बैंक ऑफ पंजाब रन कर रहा है। इट्स अ क्लोज लूप कार्ड जहाँ पर उसको किसान को हमने कैश का एक पोर्शन दे रहे हैं, बट लार्जली जो है 70% जो है वो उसको चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी मार्केट से जाके, क्वालिटी सीड्स, क्वालिटी पेस्टिसाइड्स एंड क्वालिटी फर्टिलाइज़र, सो दैट प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव। वंडरफुल। इसमें तकरीबन 60% लोग वो हैं जो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं। दिस इज अ गुड इंफॉर्मेशन। इसमें जो ख़वातीन आई हैं, ख़वातीन बोरोवर्स हैं, ख़वातीन को तकरीबन हमने को 18,000 ख़वातीन इसमें शामिल हैं, जिसमें से 1.6 बिलियन रुपए का क्रेडिट उनको मिला है। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, अभी हमें स्टेट बैंक से अवार्ड भी मिला है उसके ऊपर, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, जिसमें 24,000 लोन जो है डिसबर्स हुए जनवरी से लेकर नवंबर तक। उसमें से तकरीबन 20,000 लोन जो हैं वो बैंक ऑफ पंजाब अकेले की हैं, बिकॉज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स किसान कार्ड स्कीम, बिकॉज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स बाइक स्कीम। बाइक की स्कीम में 3,000 ख़वातीन ने, स्टूडेंट्स ने बाइक ली हैं। 3,000 आउट ऑफ सो फार 8,000, उसमें से 3,000 ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, हमारी बच्ची हैं। सो उसकी वजह से हमारा जो लैंडिंग का पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा रहा। वी हैव डन मच बेटर देन द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। हमें कोई उस तरह के काम नहीं करने पड़े, काइबोर -12 को कोट करना एंड ऑल, वी डिडंट हैव टू डू दैट। वी आर स्टिल, we may not be over 50%, but we are content with what we are doing. We don't want to distort the market. At least we should not be in that position of distorting it. तो अब हम लाइफ स्टॉक कार्ड के साथ आ रहे हैं। वहाँ पर भी एम जो है वो 4 लाख जो जानवर हैं उनको सपोर्ट करना है 27,000 रुपये पर जानवर के हिसाब से। वहाँ पर भी हमने वो कार्ड लॉन्च किया। अगेन क्लोज लूप कार्ड है।
वो तो ये तो केस स्टडीज़ हैं, एंड आई वुड इनकरेज यू कि आप उसके ऊपर एक अलहदा केस स्टडी करें, स्पेशली किसान कार्ड के ऊपर। We would love to, sir. And आपकी हम challenges पढ़ रहे थे, उसमें हमें ये समझ आया था कि while you guys are very much Punjab centric bank, but you're also a Pakistan ka bank. Yeah, absolutely. And that it gives you a good positioning also, one of the most successful government backed banks. So let's come to that discussion of. So by the way, we are just now we have already applied to the State Bank of Pakistan for the license outside Pakistan. Okay. So we have applied for a rep office in UAE and a wholesale banking license in Bahrain. Okay. So अब बैंक ऑफ पंजाब इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान में, तो हमने बहुत, हमारी तकरीबन 900 ब्रांचेस पाकिस्तान अक्रॉस हैं, 1000 कर लेंगे एक आध साल में। हमारे और भी प्लान्स हैं बहुत सारे। हम डिजिटल लाइसेंस को देख रहे हैं कि किसी और जुरिस्डिक्शन में, यूके में, इधर उधर हम डिजिटल लाइसेंस लेके वहाँ पर हम फिजिकल प्रेजेंस ना बनाएं, बट डिजिटल लाइसेंस हमारे पास हो ताकि हम रेमिटेंसेस को प्रमोट कर सकें। दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच ऑन द कार्ड्स। अभी हमने लॉन्च कर दिया बाय द वे BOP एक्सचेंज। Okay, wonderful. We would love to go. I think some of these incentives are great, and I think you guys can also be the center point for a lot of the agri community, Absolutely. corporate community to also come together. Because I think that's also something that we need. Absolutely. And technology enables now that kind of platform. और बाय द वे किसान कार्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी, या मैं स्टूडेंट बाइक्स की बता रहा हूँ चीफ मिनिस्टर की, या मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ स्टॉक कार्ड, ये एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है। I'm sure. इसके अंदर किसान कार्ड पे और जो लाइफ स्टॉक कार्ड है उसके लिए एक दफ़ा फार्मर को आना पड़ेगा, ओनली वन टाइम, टू द एग्री सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। हमने वहाँ बूथ बना दिया जहाँ वो कार्ड कलेक्ट करेगा फिजिकल, और अपनी पिन भी वहीं करवा लेगा ऑन। ये कोई और बैंक नहीं दे रहा, हम वहाँ पिन ऑन करवा रहे हैं। उसके अलावा उसको आने की ज़रूरत ही नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर एनीबडी टू कम टू फिजिकली कम एंड गो एंड वो। बाइक स्कीम में तो हम एक और एक्सटेंट पे गए, वहाँ तो डीलर को हमने इंसेंटिवाइज किया कि तुम बाइक भी डिलीवर करो टू द स्टूडेंट एट हिज हाउस। तो वहाँ तो वो बिल्कुल ही नहीं आता। एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन दैट ही इज पुट इन और शी हैज पुट इन टू द डिलीवरी ऑफ द बाइक। दे डोंट हैव टू कम टू द बैंक और टू गो टू द डीलर टू कलेक्ट देयर बाइक। Wonderful. So let's speak about private sector credit market development. I think आप भी काफ़ी अरसे से इसके बारे में सुन रहे होंगे। मैं भी 2003 से अगर मैं बताऊं, we used to hear the president those days say कि documentation of the economy. But I'm going to put this again. Maybe this is post-COVID era. A lot of things are digitized. We all have exposure to how digital works and how information sharing, how transparency works. So again, for private sector credit development, what do you think is the requirement when you talk about documentation, and also whose responsibility it is eventually? So बिल्कुल सही है। तो अब एक मिनट के लिए ना डॉक्यूमेंटेशन वाले पीस से हम हट जाते हैं और हम देखते हैं उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का इकोसिस्टम डेवलप ऐसे करें कि कुछ उसके अंदर हमें बेहतरी नज़र आए और कुछ इंसेंटिव्स बिल्ड हो। आई एम वेरी प्लीज टू शेयर विद यू मंसूर दैट पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन ने ये बेड़ा उठा लिया, और हम जो 3 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं इस वक्त इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, SME एंड डिजिटल, इसके अंदर हम क्या क्या इंसेंटिव्स बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिससे जो है इन सेक्टर्स के अंदर हम थोड़ी सी इनको सपोर्ट करें और देखें कि ये किस तरह इकोनॉमी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इवेंचुअली किस तरह हम इनको लेंडिंग भी कर सकते हैं। मंसूर, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इसको कह दें कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बहुत अनफेयर बात है। अगर हम कह दें कि स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बिल्कुल लख बात है। और अगर हम ये भी कह दें कि ये सिर्फ बैंकों का कसूर है तो मेरे ख्याल है हम बैंकों से भी बड़े अनरीजनेबल हो रहे हैं। ये हम सबको इस पे, और इंडस्ट्री, चौथी इंडस्ट्री इटसेल्फ, थोड़ा सा तो आप भी आगे चले ना। आप भी आगे बढ़ें, हम भी 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं, बट आप एक तो बढ़े ना। तो ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो है ना वो ये नहीं कर सकती। अच्छा, जहाँ ये मुश्किल सेक्टर्स होते हैं ना वहाँ पर दुनिया में ऐसे ही होता है। ये कोई यूनिक बात नहीं है। हमारे यहाँ एक नैरेटिव ये बिल्ड कर दिया कि नहीं, सरकार को जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए और इंसेंटिव नहीं देना चाहिए। सरकार को बिल्कुल इंसेंटिव देना चाहिए, बट सही चीज़ों पे इंसेंटिव देना चाहिए, गलत चीज़ों पे इंसेंटिव नहीं देना चाहिए जो रेंट सीकिंग बन जाए। IPPs पे नहीं देना चाहिए, बट SME को देना चाहिए।
और जो इंसेंटिव आपने देना है वो टाइम बाउंड हो और परफॉर्मेंस ड्रिवन हो। आप डिलीवर कर रहे हैं तो आपको इंसेंटिव मिल गया, आप डिलीवर नहीं कर रहे तो इंसेंटिव नहीं मिला। और टाइम बाउंड हो ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सकें कि यार इसका फायदा तो हो रहा है या नुकसान हो रहा है या हमें ट्वीक करने की जरूरत है। दैट डिसिप्लिन हैज टू बी पुट इन। अगर मैं बात करता हूं अमेरिका की फॉर एग्जांपल, विच इज द मक्का ऑफ फ्री इकोनॉमी, वहां पर भी देर आर, आज भी इवन टुडे, अगर मैं आई इनकरेज यू टू गो एंड चेक आउट ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट के ऊपर कि उनके एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कितने इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और प्लान्स हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि वो तो खुद जाके दे रहे हैं। टेस्ला बाय द वे, व्हेन इट केम इनटू बीइंग, they got the initial funding from a debt of 7 years from the same scheme of Department of Defense for alternate energy promotion. यार जब वो लोग ये काम कर सकते हैं तो हमें किस चीज़ की आ रहा है कि हमने ये काम नहीं करना? बिल्कुल करना है, मगर सही सेक्टर्स के लिए करना है। हमने ये एसएमई को प्रमोट करने के लिए करना है, हमने क्लाइमेट को प्रमोट करने के लिए करना है, हमने ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, हमने डिजिटल को प्रमोट करने के लिए करना है, ना कि हम किसी और सेक्टर्स को एक्सेसिव इंसेंटिव दे दें। सो ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सब मिल के फाइनेंस मिनिस्टर्स को लीड कर रहे हैं और गवर्नर स्टेट बैंक बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है और पीबीए जो है वो नीचे काम कर रहा है उसके ऊपर कि हम किस तरह ये इकोसिस्टम जो है इसको बेहतर कर सकते हैं। उसमें 4-5 बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जो है उसको लेके आगे चल रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट शामिल है, जिसके अंदर कुछ रेगुलेटरी एक्शंस चाहिए होंगे फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कुछ बैंकों को काम करना पड़ेगा, कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, पासको के वेयर हाउसेज है वो किस तरह अवेलेबल हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस। एक जो मेरा बड़ा फेवरेट है उसके अंदर फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज, वो क्या है, वो हमारा प्रॉक्सी डेटा जो आज अवेलेबल है, इतना कीमती डेटा आज अवेलेबल है विद टेलकोज एंड पावर कंपनीज कि हम चाहते हैं कि उसकी शेयरिंग शुरू हो जाए। इवन बैंकों के पास मौजूद है। सो एक हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल डेटा एक्सचेंज बने, उस डेटा एक्सचेंज में ये सारा डेटा आए और अगर मंसूर ने फॉर एग्जांपल एज एसएमई आके कुछ पैसे लेने हैं तो मंसूर मुझे ऑथराइज कर दे कि जी आप फलाने बैंक से मेरी जाके इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करके देख सकते हैं कि मेरी क्या वो है। हमने उस मद में थोड़ा काम ऑलरेडी शुरू कर दिया, उसका बेस बन गया है पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन। हम KYC का प्रोजेक्ट आगे लेके चल रहे हैं जहां पर अब आपको बार बार जाके अपनी KYC के डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे टू अ बैंक। अगर आपने दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो वो ऑलरेडी दूसरा बैंक एक्सेस कर लेगा जो आपका इनिशियल डेटा वहां पर रखा हुआ है। इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट, बट वो एक बेस भी बन जाएगा फॉर, मैं जो आपको कहा है, डेटा एक्सचेंज को शेयर करने के लिए। इस तरह ही हमें उसको इंटीग्रेट करना होगा प्राइवेट क्रेडिट ब्यूरो के साथ कि वो उनके पास बहुत कीमती डेटा मौजूद है। इसको हम चाहते हैं कि एक एक्सचेंज बन जाए ताकि हमें पास प्रॉक्सी डेटा आ जाए। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी हुई भी तो जो प्रॉक्सी डेटा हमारे पास आ रहा है उसकी बेसिस पे हम असेस कर पाएँ कि मंसूर जो है उसकी डेट रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है और कितना डेट उसको हमें देना चाहिए ताकि उसको हम एक सिस्टम में लेके आएँ। बिल्कुल। तो इस तरह के 5-6 बड़े इंसेंटिव इनिशिएटिव्स हैं जो हम इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मंसूर 75 साल हो गए, आज तक उस इकोसिस्टम में डिस्टॉर्शन सी क्रिएट हुई हैं। अब उसको ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल। और हमने एक सिर्फ गुजारिश इतनी की है कि 3-4 साल देते हैं, फिर इसका नंबर्स आपको नजर आने शुरू होंगे। मगर होता क्या है, इसमें फटीग आ जाती है जी, बिकॉज नंबर नहीं आ रहे होते ना, आपको एकदम से नजर नहीं आता बेनिफिट है। हमने प्राइवेट इक्विटी फंड फॉर एग्जांपल हम लॉन्च करना चाहते हैं, बैंक्स, पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन, जहां हम ये चाहते हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं हम उनको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो हमारे ही कस्टमर हैं, उन्होंने हमसे ही बोरो करना है। अच्छा, वो हमारे पार्टनर भी हैं फिनटेक में और एसएमई में और एग्रीकल्चर में। अगर वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो हमारी जो इवेंचुअल लेंडिंग है, दे विल बी आवर पार्टनर्स इन दिस। तो हमें उनको प्रमोट करना है, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म बट फॉर मीडियम टर्म बेनिफिट्स, फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। इवेंचुअली द थिंग्स हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स टुडे फॉर इट। होता इसमें क्या है कि ये फटीग हो जाते हैं लोग, बिकॉज 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, हर चीज़ ड्रैग आउट हो रही होती है। हमने उसके अंदर एक और इनिशिएटिव लिया हुआ है जो हम इप्सॉस के साथ मिलकर कर रहे हैं कि हम किस तरह जो है वो एक एसएमई परसेप्शन इंडेक्स जो है वो डेवलप करें।
वंडरफुल। तो उसमें हम बैंकों को ये आइडिया हो जाएगा कि इस सेक्टर के बारे में क्या परसेप्शन है, वेयर आर दे गोइंग, इसके नंबर्स कैसे लग रहे हैं, किस एरिया को हमें टेक केयर करना पड़ेगा, तो जो फैसिलिटी हमने स्ट्रक्चर करनी है वो क्या होगी, अब हम वो लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स आएंगे तो आपको 3, 4, 5 सालों में नंबर्स कुछ रैंप अप। सिर्फ एक चैलेंज है इस वक्त, वो ये है कि यू हैव टू रिमेन स्टेडफास्ट एंड कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस, कि ये इसमें टाइम लगेगा एंड एट सम पॉइंट इन टाइम इंशाल्लाह ताला इट विल स्टार्ट बियरिंग फ्रूट। एब्सोल्युटली। और डेटा कितना देखें क्लीन हो जाएगा इफ यू वर्क ऑन Exactly. Absolutely. डेटा क्लीन अगर हो जाएगा इट विल ऑटोमेटिकली टेल यू कि इसको हम लोन दे सकते हैं। बिल्कुल। सर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेविंग साइड, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द सेविंग साइड, आप खुद अपनी पर्सनल सेविंग्स कहाँ करते हैं? अरे यार मैं तो बहुत ही पुअर सेवर हूँ। Okay. तो आपने गलत आदमी से पूछ लिया, बट मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपने जो सेविंग है उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो एक तो मैंने क्योंकि बाहर बहुत काम किया है मंसूर, तो मेरे पास कुछ जो फॉरेन करेंसी पड़ी हुई थी वो मैंने, फॉरेन करेंसी बाहर ही है मेरे पास, तो वो मैंने वहाँ पर मैं आई एम नॉट एन एक्टिव इन्वेस्टर? ज़ीरो मतलब मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे जो पोर्टफोलियो में लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। मेरी सिर्फ नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस ज़रूर हैं। मेरी नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने BOP में शेयर में नहीं डालने, और आपने OGDC के शेयर में नहीं डालना, क्योंकि उसका मैं चेयरमैन हूँ। लेकिन उसके अलावा आपने जो करना है आप करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मेरा वो एक इंटरनेशनल मेरा फंड मैनेजर है, वो उसका इंटरनेशनल जो मेरे पास पहले से पैसे थे वो करते रहते हैं। जो मेरे पास लोकल पैसे हैं वो मैंने एक अलहदा इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो करता रहता है। और मैंने कुछ पैसे जो है वो इस तरह कैलकुलेट किया कि मेरी कितनी मंथली ज़िम्मेदारी मुझे चाहिए। तो अगर मैं 60 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में रिटायर होता हूँ तो उसके बाद वो मेरा लाइफस्टाइल उस तरह ही मेंटेन रहे। तो अगर मुझे 15-20 लाख रुपए चाहिए महीने के, तो ऑन द टॉप से 10 लाख 15 लाख चाहिए, तो वो मीट होता रहे। उसको मैंने पैसे रखवाए हुए हैं इन द पेंशन फंड विद वन ऑफ द एसेट मैनेजर्स। बाकी जो मेरे पास कुछ कैश पड़ा हुआ है मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में डाला हुआ है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट हाउ आई हैव डिवाइडेड माय दिस थिंग। वंडरफुल सर। एंड थोड़ा सा आप ये, बिकॉज यू सिट ऑन इन अ प्लेस जहाँ से आपको इकोनॉमी नज़र आ रही होती है, what are some of those sectors that where you think activity is going to happen? Are you bullish about in the 2 to 3 year medium term? So एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है मंसूर, वो ये है कि यू नो वी हैव ऑलवेज बिन there has been a narrative which was built over few decades that you know agriculture contributes mainly 20% towards the GDP. So perhaps it doesn't. अच्छा कहाँ से आ रहा है ये नैरेटिव? ये यहाँ से आ रहा है कि अगर आप 2 सेक्टर देखते हैं इकोनॉमी में जिनमें सबसे ज़्यादा आपकी सब्सिडी जाती है, तो वो 2 सेक्टर हैं। एक एनर्जी सेक्टर है और दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर है। तो पहले नंबर पे एनर्जी है, दूसरे पे, और नंबरों में तकरीबन वो कोई 1 ट्रिलियन प्लस है, और ये जो है तकरीबन को 300-400 बिलियन है। तो एक नैरेटिव ये बिल्ड किया गया कि जी वाई आर वी इन्वेस्टिंग सो मच इनटू दिस, बिकॉज यू नो इट्स नॉट गिविंग अस द नेसेसरी रिटर्न। तो अल्लाह का शुक्र ये कि वो काफ़ी हद तक नैरेटिव अले हो गया इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। Okay. और अब ये रियलाइजेशन आ गई है कि यार मे बी द डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी अराउंड 20%, बट BOP हैज़ डन अ रिसर्च अ फ्यू ईयर्स बैक जिसमें हमने ये कैलकुलेट किया था कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं विद डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या आता है, और वो GDP का इम्पैक्ट तकरीबन कोई 46.4% है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि मैं ये कह सकूं बड़े सेफली कि तकरीबन 50% जो है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट के नंबर देखेंगे तो ये वैसे कोलैबोरेट हो जाता है। जो पाकिस्तान की टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका तकरीबन आधा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, 40, 50, 45 पे, तो उससे ये भी कोलैबोरेट हो जाता है। ये तो मैं आपको एम्प्लॉयमेंट के अलावा नंबर बता रहा हूँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस। तो इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है इसको। अच्छा, इस सेक्टर में एक और इंटरेस्टिंग इसके एक एलिमेंट है। वो इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि ये सेक्टर जो है ना इसके अंदर क्विक रिटर्न्स भी मौजूद है। अच्छा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं भी किसी और चीज़ में लगाएंगे तो उसमें शायद बेनिफिट, स्पेशली जिस तरह
एनर्जी सेक्टर उसमें तो शॉर्ट टर्म जो है वो 3 साल होता है। इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म है वो शॉर्ट टर्म है, यानी नॉर्मली हम जो शॉर्ट टर्म का वर्ड यूज़ करते हैं वो 1 साल करते हैं, यहाँ तो एक क्रॉप की साइकिल 6 महीने है, उसका बेनिफिट 6 महीने बाद आपके सामने आ जाता है। सो देयरफॉर दिस इज़ वन सेक्टर दैट आई थिंक कैन मेक अ बिग डिफरेंस, बिकॉज वो नैरेटिव जो है ना वो चेंज हुआ है, फोकस बढ़ा है इसके ऊपर, और इसके क्विक बेनिफिट्स जो है ना वो हम रीप कर सकते हैं इन शॉर्ट रन। इस वक्त हमारा जो डेल्टा है करंट अकाउंट के ऊपर, डेफिसिट के ऊपर, वो तकरीबन को $15 बिलियन का है ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एक तरफ एक्सपोर्ट्स हैं, दूसरी तरफ इंपोर्ट्स हैं। मैं जब दोनों को मिलाता हूँ तो तकरीबन 15 अरब के करीब, 10 से 15 अरब बनता है। वो 10 से 15 अरब डॉलर जो है, अगर आप एक तरफ वो बढ़ा लें अपनी एक्सपोर्ट्स, दूसरी तरफ आप इंपोर्ट्स को कम कर लें, तो वो तो आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इक्वेशन बन जाती है। एंड आई थिंक वो एक सेक्टर ऐसा है जिसमें मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। उसके अलावा वैसे भी आई थिंक ये एसएमई वगैरह पे भी फोकस बहुत ज़्यादा है, मगर इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। इमीडिएटली अगर हम मुझसे पूछें तो एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग। एग्रीकल्चर इज मोस्ट प्रॉमिसिंग। एक और चीज़, एंड माय फेवरेट टू बाय द वे, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, दे आर लर्निंग अबाउट इट, दे से कि एक पॉइंट के बाद रिटर्न्स काफ़ी अच्छे भी हो जाते हैं, एंड देयर इज दिस आल्सो दिस एलिमेंट ऑफ नेचर। यस, सो उसके अंदर वो अच्छा जो उसके पेरिफेरीज हैं वो तो बहुत सारे हैं ना जी। तो क्लाइमेट इज़ द बिग पेरिफेरी ऑफ इट, बिकॉज इंटरेस्टिंगली इनफ, पता नहीं मंसूर आपको इस बात का अंदाज़ा है नहीं कि जो सबसे बड़ा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो है आपकी लाइफ स्टॉक फार्म्स, और लाइफ स्टॉक जो है वो तकरीबन 13% है ऑफ द, यानी कि अगर मैं उसको निकालता हूँ तकरीबन 60-70% जो है ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर इज लाइफ स्टॉक अलोन। बिल्कुल, एक वो एलिमेंट है, दूसरा द अदर वन इज द फूड सिक्योरिटी का एलिमेंट, द थर्ड वन इज द लाइवलीहुड ऑफ पीपल, the financial inclusion का element, right, and women, lifting the lives of people, including the women, this thing। तो ये जो मैं किसान कार्ड आपको बता रहा हूँ, इसमें 75% women are first time borrowers, और उसके अंदर से भी जो 75% हैं ख़वातीन, वो हैं जो 3 एकड़ और बिलो लैंड की ओनर हैं। Amazing. I think we must talk about that story. ज़रूर। It's a very good projection of what is happening in Pakistan also. Yes. So because you are on OGDCL's board, I'm not going to ask you to reveal anything that is of course confidential, but given that you would know what is happening at the OGDCL level, I'm sure there are transactions happening या कुछ हो रहा होगा, but जब हम OGDCL जैसी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं उससे पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी कनेक्टेड है। सो टू एंड ऑन दिस नोट, जो आप OGDCL के हवाले से व्यू देते हैं, जो कुछ पार्टनरशिप्स जो अंदर डिस्कशंस होंगी, हाउ डू यू सी पाकिस्तान एग्जिटिंग दिस डेकेड 2030 इफ ऑल गोज अकॉर्डिंग टू 2030? सो मसूद 3-4 एलिमेंट्स हैं। आप जिस साइट पे अलूड कर रहे हैं उसको मैं ये बता दूं कि बड़ी एक्टिव इंगेजमेंट है हमारी, और उसके अंदर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आएगी, और वो डील भी पाकिस्तान के बहुत फेवर में है बाय द वे। अनलाइक द नैरेटिव दैट्स बीन बिल्ड कि पता नहीं कि वन साइडेड डील हो गई और ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर ऑल पाकिस्तानी, वी आर ऑल पेट्रियोटिक पाकिस्तानीज, एवरीबडी। सो खुदा के वास्ते जो हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं ना कि ये गद्दार है और फलाना ढमकाना, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एक्चुअली द डील व्हेनेवर इट्स रिवील्ड टू द पब्लिक, it's a very very interesting and very favorable deal for Pakistan in multiple ways than one. The other thing is कि अब ये सेक्टर जा कहाँ रहा है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ये तो वन ऑफ ट्रांजेक्शन होगी जो हमने बात की। अब इस सेक्टर में ना 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं जिसमें मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि अब जो हमारे पास फील्ड्स हैं जिनके अंदर लार्जर पोटेंशियल है, वो हाई सिक्योरिटी एरियाज़ में। तो जब तक कि वो सिक्योरिटी एलिमेंट्स को हम टेक केयर नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे लिए एक सब्सटेंशियल वे में जाना, यानी कि सुई एरा में जाना 1960s के शायद मुश्किल हो जाए, या जो हमने यहाँ कादरपुर है सिंध में, उसमें हम गए थे 80s में, वो शायद मुश्किल हो जाए। एक इस तरह का बड़ा ब्रेक थ्रू हमारे पास आ सकता है, मगर वो फील्ड्स जो हैं वो इस वक्त ज़रा
वो हाई सिक्योरिटी एरियाज में। अच्छा, अब वो हाई सिक्योरिटी एरिया को हैंडल करने के भी तरीके हैं। इट एसेंशली बॉइल्स डाउन टू द कॉस्ट। तो क्या हम वो कॉस्ट देने को तैयार हैं? यकीनन तैयार, मगर उसके लिए पूरा एक सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा कि वो हो सके। और मैं आपको एक आसान अल्फाज में वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरह पावर सेक्टर के अंदर अपफ्रंट टैरिफ है और कॉस्ट प्लस टैरिफ है, हमें वो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है इन द ENP सेक्टर एज वेल। एंड ENP सेक्टर के अंदर अगर हम वो इंट्रोड्यूस करा लेते हैं तो हर फील्ड की अपने डायनामिक्स हैं। हर फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसके अंदर क्वालिटी ऑफ गैस की और पेट्रोल जो आ रहा है वो डिफरेंट है। ख़ासतौर से गैस का, लो BTU गैस होती है, हाई BTU गैस होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं। आपको उसको अपग्रेड करना पड़ता है, आपको उसको थोड़ा सा ट्रीट करना पड़ता है टू मेक इट मोर सूटेबल फॉर द सिस्टम। तो हर एक फील्ड की डायनामिक्स डिफरेंट है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस फील्ड के हिसाब से वेल हेड प्राइस ऑफर करें कि अगर आपने इसको प्रोड्यूस किया तो आपको यहाँ से कितने देना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी हाईली स्किल्ड एंड कॉम्प्लेक्स एरिया विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल सेट। वो ऑब्वियसली आज हमारा क्योंकि रेगुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो देर इज़ एन अशद नीड ऑफ हैविंग ए रेगुलेटर इन प्लेस फॉर ENP। सो हमारे पास जो आज जिसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, यानी कि रिफाइनरी और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनका रेगुलेटर तो मौजूद है क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद द कंज्यूमर इफेक्ट। ये क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कंज्यूमर इफेक्ट से, और ये थोड़ा सा रिमूव्ड है फ्रॉम दैट, तो यहाँ पर रेगुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता। वी नीड अ सेपरेट रेगुलेटर फॉर द ENP सेक्टर फॉर एक्सपर्टीज इन दिस एरियाज। फिर उसके अंदर टेक्नोलॉजी आनी है, तो एक आपने इंसेंटिव बिल्ड करना होगा टू मोटिवेट दीज ENP कंपनीज टू गो डाउनस्ट्रीम कंपनीज टू गो एंड इंट्रोड्यूस दैट। फिर आपके पास ऑफशोर बहुत बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बहुत ही उम्दा डिसीजन लिया है जिसमें वो कह रही है कि आप 35% जो है वो डायरेक्टली दे सकते हैं टू द प्राइवेट सेक्टर। तो आपको सिस्टम के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, आप व्हीलिंग यूज़ करें आज ऑफ सुई द 2 सुई कंपनीज, मगर आप डायरेक्टली OGDC से डील कर लें। तो तो ये इन अ वे डीरेगुलेशन ऑफ द सेक्टर इज़ द नीड ऑफ द आवर। बट वो डीरेगुलेशन मैं हमेशा से यही मेंटेन किया है। आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा मैंने ये कहा है कि देखिए प्राइवेटाइजेशन ज़रूर कीजिए, डीरेगुलेशन ज़रूर कीजिए, मगर तगड़ा रेगुलेटर ज़रूर रखिए, क्योंकि तगड़े रेगुलेटर की एब्सेंशिया में अगर आप डीरेगुलेशन या प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। और यहाँ भी यही चीज़ है कि आप डीरेगुलेशन ज़रूर कीजिए, मगर इतना तगड़ा रेगुलेटर होने की ज़रूरत है। तो नीड ऑफ द आवर इज़ टू हैव दिस थिंग इन प्लेस। द सेकेंड अपॉर्चुनिटी, और इसके अंदर जो मैंने सब अपॉर्चुनिटीज थी वो आपको बता दी। जो सेकेंड अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है वो माइनिंग सेक्टर के अंदर है। वहाँ पर भी परहैप्स वो जो डाउन स्ट्रीम हम बात कर रहे हैं, अपस्ट्रीम रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं, उसको माइनिंग को भी इस पर लेने की ज़रूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि दी ENP कंपनीज, बिकॉज वो DNA उनका सेम है, दे कैन डू दिस वर्क मच बेटर दैन एनीबडी न्यू कमिंग इनटू द सेक्टर, विच इज़ यू नो दिस थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या कहते हैं उसको, माइनिंग सेक्टर, फॉर देम टू बी मोर एक्टिव इन द माइनिंग सेक्टर। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन की भी ज़रूरत है, बिकॉज आज माइनिंग में हमारे पास अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ऑल्दो उधर भी हैं, मगर वहाँ सिक्योरिटी की वजह से, और nevertheless that has to be addressed. But at some point in time we have to broaden our horizon and go for the diversification as well. Thank you so much, Zafar Saab, and we hope to continue to do this, maintain the tradition. Zarur. Thank you, Zarur. sir. Zarur.